Good afternoon, dear students. Let's start our today's social science class. We have started our second chapter of economics, that is people as a resource. संसाधन के रूप में लोग. In this chapter, till now we have done that why human being is considered as one of the most important resources for any nation. And then we did that how a human being can be transformed into a human resource by making investment on his education, medical facility, and training skills. Then we did the story of Sakal and Vilas, in which we have seen that how after getting a proper education, Sakal got good job, improved his skills, and finally he was able to change the economic and social condition of his family. While Vilas, who was not medically fit, family was poor, couldn't afford his medical expenses, and he didn't even learn anything new in his life. That's why he had to follow his family occupation, that is of fish selling. And then, because of all these reasons, he couldn't improve the socio-economic conditions of his family. It means to learn something new is really important in our life. If we'll keep learning, we will keep improving. It will improve our own situation only. Okay. So our today's topic is economic activities. First, we need to know that what is economic? Yeah, what is economics? Anything related to money or finance that we study under economics. आप लोग जानते हैं आप लोगों के सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. हिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट आवर पास्ट, ज्योग्राफी that is the study of earth, political science study of politics, economics study of economy, means anything any financial matter. Fine. So economic activities means any work that is done to earn money comes under economic activities. कोई भी काम जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं वो किस में काउंट होगा या वो किस में रिकॉग्नाइज होगा? इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड नो डाउट जब हम कोई काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा मोटिव भी क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. चाहे हमारा अपना बिजनेस है या हम कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब करेंगे तो हम सोचेंगे हमारी प्रमोशन हो जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए. और वहीं पर अगर हम लोग अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हर बार हम क्या सोचेंगे, हमारे बिजनेस और अच्छा चले एंड वी गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम इट. नेक्स्ट कम्स द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द वर्क डन फॉर सोशल वेलफेयर. कोई भी ऐसा काम जो हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ डन जस्ट फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन. कोई काम करके हमें अच्छा लग रहा है, वी आर फीलिंग सेटिस्फाइड, वी आर फीलिंग हैप्पी, और जस्ट टू हेल्प अदर्स. Such kind of work is considered as non-economic activity. Why? क्योंकि जब हम कोई समाज सेवा का काम करते हैं तो वो हम पैसे के लालच में नहीं करते. वहाँ पर हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता. वहाँ पर हम लोग जस्ट या तो किसी की हेल्प कर रहे हैं या वो काम करके हमें खुशी मिल रही है. दैट्स व्हाई वी डू दिस एक्टिविटी. अब बेटा ऐसा भी हो सकता है कि एक ही काम इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कंसिडर किया जाए और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कंसिडर किया जा सकता है, बट इन डिफरेंट सिचुएशंस. द वर्क विल बी सेम, द सिचुएशंस कैन डिफर. फॉर एग्जांपल, look here you can see a picture in which both persons are cooking food, but the person on the left side is a professional chef working in a restaurant, and because he is a professional chef, that's why he will get income or salary for his work. While this lady on the right side, she is cooking at her home for her family members. शेफ को उसका काम करने के लिए, शेफ को कुकिंग करने के लिए पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगी. बट इफ योर मदर और एनी women cooking at home, she will not get any income, she will not get any salary. क्या हम उनको पैसा देते हैं कि मम्मा ने हमारे लिए खाना बनाया है? नहीं. ठीक है. तो कोई काम किस जगह पर किस मोटिव से किया जा रहा है उसके बेसिस पर वी कैटेगराइज इट इनटू इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़.
Again, it is further of two types. The first one is market activity and the second one is non-market activity. Now, what are market activities? Market नाम से कहीं ना कहीं हमें क्लियर हो रहा है, मार्केट में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, परचेज करते हैं. तो market is a place where selling and purchasing is done. Okay, so when the production is done to sell in the market, that is called the market activity. And when the production is done for self consumption, that is considered as non market activities. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए आ गया तो फिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है? यस, इट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि पैसा कमाना या पैसे बचाना बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. ओके, अब मार्केट एक्टिविटी में और नॉन मार्केट एक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ फार्मर. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ फार्मर. Suppose there is one poor farmer and one big landlord or a rich farmer. अब जो गरीब किसान होगा वो, उसके पास ज़मीन कम होगी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसकी क्रॉप प्रोडक्शन भी कितनी होगी? क्रॉप प्रोडक्शन उसकी सिर्फ इतनी होगी कि वो अपने घर वालों का खर्च निकाल सके. उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो उसको मार्केट में सेल भी कर सके. बट हर बार जब वो न्यू प्रोडक्शन करेगा, अपने खेतों में खेती करेगा, तो उसका मोटिव क्या होगा? वो हर बार क्या कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगे. प्रॉफिट तो वो भी कमाना चाहेगा ना. बट नॉन मार्केट एक्टिविटी, सॉरी मार्केट एक्टिविटी, व्हेन देयर इज़ अ बिग लैंडलॉर्ड, उसके पास खेत बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो फाइनली क्या होगी? उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और उसकी इतनी प्रोडक्शन में से वो अपनी फैमिली के लिए बचा के ही हैज़ सरप्लस इनफ टू सेल इन द मार्केट. और हर बार जब वो न्यू क्रॉपिंग सीजन में क्या सोचेगा कि उसकी फसल ज़्यादा हो, उसकी क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ताकि वो मार्केट में और ज़्यादा बेचकर और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. ठीक है, सो व्हेन द प्रोडक्शन इज डन टू सेल इन मार्केट, देन इट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी, and when it is done for self consumption, then it is called non market activity. Now, any kind of economic activity that we do, that is categorized into three parts: primary sector activity, secondary sector activity and tertiary sector activity. इनको हम हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कहते हैं. ठीक है. नाउ विच एक्टिविटीज कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर? प्राथमिक, इट मीन्स समवेयर बेसिक एक्टिविटीज. सो वेन एवर वी डू द प्रोडक्शन बाय डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. जब हम डायरेक्ट प्रकृति से किसी भी तरह का उत्पादन करते हैं वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हेयर फॉरेस्ट्री, मिनरल एंड माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग. इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे ये सभी नेचर से जुड़ी हुई हैं. खेती करनी है तो वी नीड द लैंड. फिशिंग पॉन्ड में हो रही है या रिवर में हो रही है, दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट आर द नेचुरल रिसोर्स. ठीक है. पोल्ट्री फार्म करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वी डू. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड अंडर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. देन कम्स आवर सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी. सेकेंडरी, द्वितीयक क्षेत्र. नाउ दिस इज द सेक्टर वेयर वी डू द मैन्युफैक्चरिंग वर्क. यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को का उत्पादन कर रहे हैं और वो उत्पादन कैसे कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में हमने जो भी प्रोडक्शन की है उनको हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल और फर्दर हम उससे करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. Here you can see, because we are using here industries, that's why it is also called industrial sector. ठीक है. And we use, no doubt that we use the machineries. Now for example, we have sugar mills in our own area. अब शुगर मिल क्या है? वो एक तरीके की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है. शुगर मिल रॉ मटेरियल कहाँ से ले रही है? एग्रीकल्चर से. वी यूज़ द शुगर केन एंड देन चेंज इट into sugar. For cotton textile industries, we use cotton that is produced in agriculture and then we transform it into clothes. So these are the example of the industrial sector.
or the secondary sector. Then comes our tertiary sector. Students, the tertiary sector is totally different from the other two sectors because in primary and secondary sector we produce something. हम वहाँ पर किसी ना किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, पर जो हमारा तृतीय क्षेत्र होता है, जो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है, वी डोंट प्रोड्यूस हियर एनीथिंग. हम किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहे, बट वी ओनली प्रोवाइड सर्विसेज. हम यहाँ पर बाकी दोनों सेक्टर्स को सेवाएं प्रदान करेंगे थ्रू द टर्शरी सेक्टर. Now what kind of services do we provide? Like you can see here, transportation, okay, then doctors, you can take the example of teachers. All these people, yeah, in all these occupations we don't produce anything. Transportation हमारे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो हमारी हेल्प कर रहा है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में. Similarly, doctors, they are not producing anything. They are treating the sick people. They are helping the people who are not well. Teachers, we are also not producing anything. We are just educating our generation, our new generations. IT सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, तो IT सेक्टर में किसी भी तरह की प्रोडक्शन नहीं होती है. IT सेक्टर में भी जो है इट प्रोवाइड्स अस दी services to make our life easy. And because this sector does not produce anything, it only provides service, that is why it is also called service sector. इसलिए हम इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं. So these are the three sectors in which we categorize all the economic activities. I hope it is clear to you all. Our topic is finished here. We will do the next topic in next video. Take care. If any doubt, please ask.